Are we ready? Yeah. Good evening and welcome to the fourth CGHS webinar on the digital initiatives of CGHS. Today's topic is aiming of CGHS subscription to Bharat Kosh, which is a non-tax receipt portal which is used to deposit any fees or fine for any other kind of money into the government account directly. CGHS Directorate has come out with a new set of guidelines which was released on 18th August 2023, which mandates that payment of CGHS contribution by pensioners who CGHS card making has to be done only through Bharat Kosh portal and any other method of payments will not be allowed from 31st of October 2023. So this topic is very important for the pensioner beneficiaries who are joining us today. We have Dr. Nisha Dharan, North Officer NCTC, to give us a short talk and demonstration of the process of payment. Before we begin, it is informed that all the queries pertaining to the topic in hand can be put in the chat box and they will be discussed at the end of the talk. I welcome Dr. Nisha to please enlighten us on the topic. Thank you. Thank you, Anandu. A very good afternoon to all our beneficiaries. Welcome to the fourth webinar on digital initiatives in CGHS. मैं कोशिश करूंगी कि बहुत हिंदी और इंग्लिश में बात करूं क्योंकि हमारे बेनिफिशरीज कंट्री के अलग अलग कोनों से आए हैं एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश अलोन और हिंदी अलोन may be a little difficult for some of the beneficiaries. CGHS ने कई सारी डिजिटल इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट किया है कुछ सालों में so that CGHS services are easily accessible and available online to the beneficiaries. हमारे कई सारे बेनिफिशरीज स्पेशली जो एल्डरली हैं वे शायद इन इनिशिएटिव्स को यूज़ इतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं as they are not comfortable in using computers and using these initiatives while online. That is why we started these series of webinars on the digital initiatives so that our elderly beneficiaries can overcome their hesitation and use these initiatives. Today's webinar is on the payment of CGHS card subscription. भारत कोश एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है जिसके थ्रू CGHS card subscription pensioner beneficiaries pay कर सकते हैं. So starting this webinar, what exactly is Bharat Kosh? It is a one-stop online service of the Ministry of Finance to deposit any fees, fine or any money into the government account. So besides CGHS subscription, आप यदि कोई RTI फाइल करना चाहते हैं और उसकी फीस पेमेंट करनी है तो वो भी इस पोर्टल के थ्रू किया जा सकता है. So basic idea is that all the departments of the government of India, they are converging on this platform to receive money from the public that goes into the government account. So ये 24/7 इलेक्ट्रॉनिक सर्विस है to deposit money into the government account और ये इंटरनेट को यूज़ करता है. बेनिफिशरीज का फ़ायदा सबसे बड़ा यही है कि दे डू नॉट हैव टू गो टू द बैंक टू मेक अ डिमांड ड्राफ्ट एंड देन डिपॉजिट इट इन द गवर्नमेंट अकाउंट. वो अपने घर के कंफर्ट में बैठकर ही गवर्नमेंट अकाउंट में पैसे जमा करवा सकते हैं थ्रू दिस भारत कोश पोर्टल. आप शायद जानते ही हैं कि CGHS सब्सक्रिप्शन पेंशनर बेनिफिशरीज के लिए अक्रॉस द कंट्री भारत कोश पोर्टल के थ्रू ही लिया जाता है और हाल ही में दिल्ली ने भी अपने ऑर्डर्स निकाले हैं कि 31st ऑफ अगस्त के बाद डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू CGHS कार्ड का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाएगा. इट विल बी थ्रू भारत कोश ओनली. इसी वजह से हमने ये वेबिनार अभी करने को वी प्लान टू डू दिस वेबिनार सो दैट बेनिफिशरीज आर अवेयर ऑफ द स्टेप्स that are to be followed while making the payment through Bharat Kosh portal. So like I was saying, payment for pensioners for the CGHS subscription, this is for payment of lifeline subscription. ये one time payment आप कर सकते हैं या जो beneficiaries yearly renewal कराते हैं they also can use this portal. तो the general guideline to be followed is कोई भी payment आपको CGHS कार्ड के लिए online payment करना है, be very sure what is the amount of subscription that has to be paid. And this information आपके जो additional directors सिटी या दिल्ली में जो headquarter हैं वहाँ से आपको वो information मिल सकती है as per your eligibility. Coming to the steps to make the CGHS subscription through Bharat Kosh portal. तो जो URL है
या जो एड्रेस जो आपको टाइप इन करना है अपने उस सर्च इंजन पे, वो है bharatkosh.gov.in। ये वाला पेज खुलता है व्हेन यू टाइप इन दिस bharatkosh.gov.in। एंड इसमें दो तरीके हैं, या तो यू कैन लॉग इन एज अ रजिस्टर्ड यूजर और इट कैन बी एज अ नॉन रजिस्टर्ड यूजर। It's not moving forward. Okay. So this is the page that opens. Easiest will be to go in as a non-registered user, because registered user के लिए आपको कुछ और steps और अपनी कुछ और details डालने पड़ेंगे. It is simplest to go as a non-registered user. This is the next page that opens. इसमें आप देखेंगे these are the steps that are to be followed. First is the payment purpose, which is this page. The next page, जब ये complete हो जाएगा, the next step will be putting in your own depositor details. Third step is confirmation of the information, and the fourth step is the payment. So this is the first page that opens, which is the payment purpose. आप किस लिए इस पोर्टल पे पेमेंट करना चाहते हो? What is the purpose of making payment through this online portal? इसमें आप डिपॉजिटर्स कैटेगरी जो है वो आप एज इंडिविजुअल डालेंगे, बिकॉज यू आर पेइंग एज अ सिंगल CGHS beneficiary who wants to make payment into the government account for the card subscription. So the depositor category that you will choose is individual. जब आप पर्पस पे क्लिक करेंगे, you can see the search icon. I will shift to the next slide that will show you when you click on the search icon आपका क्या पेज खुलता है. By default, when you open the click on search icon in the purpose, by default जो मिनिस्ट्री दिखती है वो है AG ऑडिट दिल्ली, लेकिन आपको जो है सर्च करके हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे जाना है, बिकॉज CGHS इज अ डिपार्टमेंट अंडर द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री. सो आप चूज करेंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. उसके बाद जो आपको विंडो दिखेगा उसमें बहुत सारी चॉइसेस आएंगी. व्हाट यू हैव टू टाइप in purpose is pensioner contribution. This is something that you may write down or jot down somewhere, because this is where you have to go. This is the purpose that you have to choose. जब आप इसे चूज करेंगे तब आपके पास चॉइसेस आएंगी आपकी सिटीज की. So please type in pensioner contribution for CGHS card, and then आपके पास जो drop down आएगा उसमें various combinations of cities जैसे ये दिख रहा है इस drop down में वो आएगा. Now we have 6 pay and accounts offices for CGHS, various CGHS cities, and each of these choices जो आपको दिख रही हैं, there are 6 of them, they all pertain to the cities which that pay and accounts office caters to. सो सपोज आप चंडीगढ़ की सिटी से हैं, आपको चंडीगढ़ में कार्ड बनवाना है, तो आप ये वाला फर्स्ट चॉइस क्लिक करेंगे. सपोज आप यू वांट टू गेट अ कार्ड मेड एंड यू हैव अप्रोच एडिशनल डायरेक्टर पुणे, you want to make payment to additional director Pune, then the choice that you will click is pensioner contribution for CGHS card, where this city Pune is shown. So उस तरह से आप इसको क्लिक करेंगे. So I'm taking the choice, suppose it is pensioner contribution for CGHS card Delhi. That was the choice that I clicked. So this is the page that opens. अब आप देखेंगे कि जब मैंने इसको क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली पेज खुल के आ जाता है. इसमें जो ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर की डिटेल्स हैं और पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर के डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली खुल के आ जाते हैं. After that, I click on the search. This is the search button. Click on the search button. The next page that appears is so these are the details that I'm required to fill in. जैसे आपने देखा ये जो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर CGHS के डिटेल्स हैं, PAO का जो कोड है और जो DDO का कोड है दिल्ली के लिए, वो ऑटोमेटिकली ऑटोफिल करके आ जाते हैं. सो प्रीवियस पेज में जो आपने सिटी को सिलेक्ट किया है उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली ये ऑटोफिल करके आ जाती हैं. नाउ जो आपको भरना है कॉलम वो है अमाउंट. जो इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल डायरेक्टर सिटी ने दिया है रिगार्डिंग कि आपका सब्सक्रिप्शन कितना होगा, वेदर
चॉइस आपकी है कि आप लाइफ टाइम का देना चाहते हैं और whether it is yearly that you want to fill in. Accordingly, the amount has to be filled in here in this column. पेमेंट फ्रीक्वेंसी इज, यदि आप उसको ईयरली करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन में आप ईयरली चूज कर सकते हैं. इफ इट इज अ सिंगल लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन देन बाय डिफॉल्ट द ऑप्शन दैट कम्स इन इज नो रिस्ट्रिक्शन. इसको ऐसे ही चलने दें. रिमार्क्स में जो इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. आप इसको नोट कर लें बिकॉज इसके बिना फिर जो पेमेंट आप करेंगे समझ में नहीं आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए आपने उसको फिल किया है. सो दीज डिटेल्स आर मैंडेटरी. इसमें पेंशनर अपना पेंशन पेमेंट ऑर्डर का नंबर जो है वो नोट करेंगे. जब आप ऑन कार्ड को पहली बार अप्लाई करेंगे, देयर इज़ अ टोकन नंबर दैट इज़ टू बी फिल्ड इन हियर. जब आप कार्ड को ऑनलाइन भरते हैं, टोकन नंबर जो जनरेट होता है दैट इज व्हाट इज टू बी फिल्ड इन हियर. उसके अलावा यू विल हैव टू मेंशन वेदर यू आर अप्लाइंग एज अ पेंशनर, एज अ जर्नलिस्ट और एज एन XMP. सो ये 3 इन्फॉर्मेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है भरना. नेक्स्ट जो आपको कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है वो भर दें आप एंड देन यू क्लिक ऑन ऐड. सो रिएटरेटिंग वंस अगेन, जो ऊपर वाले कॉलम्स हैं, जब आप अपनी सिटी को सिलेक्ट करते हैं इन द प्रीवियस पेज, ये ऑटो फिल करके आ जाता है. व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू फिल इज द अमाउंट, द PPO नंबर, द टोकन नंबर, and whether you are applying as a pensioner, as a journalist or an XMP, and then you fill the CAPTCHA. When I click on add, मैंने ऐड क्लिक किया तो अब ये वाला पेज खुल गया जिसमें ऑटोमेटिकली जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रीवियस पेज में भरा था वो सारा आपको यहाँ पे दिख रहा है. अमाउंट हियर इज शोन एज 1 रुपी क्योंकि एज अ टेस्ट जस्ट टू शो यू हमने 1 रुपया का ट्रांजैक्शन किया था ऑन दिस. दैट इज वाई दिस अमाउंट इज शोन एज 1 रुपी. जो अमाउंट आपने प्रीवियस पेज में भरा है वही यहाँ पे फिल करके आएगा. सो जो हमने मिनिस्ट्री सेलेक्ट किया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो यहाँ पे आ गया है. पर्पस हमने सेलेक्ट किया था CGHS कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पेंशनर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर CGHS कार्ड और हमने दिल्ली सिटी सेलेक्ट किया था तो पर्पस में यही आ गया. पे एंड अकाउंट्स ऑफिस के जो कोड है वो DDO का कोड है वो आ गया. अमाउंट जैसे मैंने बताया था आपने जो भी आप फिल करेंगे वो आ जाता है. पेमेंट पीरियड मैंने नो रिस्ट्रिक्शन सेलेक्ट किया था बाय डिफॉल्ट तो वही आ गया है. एंड देन आई हैव टू क्लिक नेक्स्ट. नाउ द सेकेंड, हमारा पेमेंट पर्पस कंप्लीट हो गया. कमिंग टू द सेकेंड विच इज डिपॉजिटर्स डिटेल्स. यहाँ पे पेंशनर हैज टू पुट इन हिज ओन डिटेल्स. दिस इज द टाइटल. यहाँ पे आप अपना नाम भरेंगे. नाम जब भरेंगे तो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन या स्लैश, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये आप नहीं भरेंगे. सो जो आपका नाम है वो आप यहाँ पे भर दें. योर एड्रेस, कंट्री, दीज जो रेड एस्ट्रिक मार्क्ड हैं आइटम्स ये सारी मैंडेटरी हैं. सो ऑल दीज कॉलम्स हैव टू बी फिल्ड इन. टैन और टिन मैंडेटरी नहीं है, जिप कोड मैंडेटरी नहीं है, यू कैन लीव दीज. मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, इसको प्लीज भरें. और ईमेल, मोबाइल नंबर पे आपकी OTPs आएंगी ड्यूरिंग योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसलिए मोबाइल नंबर सही तरीके से डालना बहुत ज़रूरी है. सो ऑल्सो आपका ईमेल ID. इन दोनों में यू हैव टू बी केयरफुल कि गलती ना करें बिकॉज फिर OTP नहीं आएगा एंड योर ट्रांजैक्शन विल नॉट गो थ्रू. उसके बाद यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन ऑनलाइन पेमेंट और स्विफ्ट बाय NEFT बाय RTGS. क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप में नॉन रजिस्टर्ड यूज़र की तरह लॉगिन किया तो हमारे पास ऑप्शन ये ऑनलाइन पेमेंट का ही आएगा. उसके बाद वी क्लिक द नेक्स्ट बटन. सो गोइंग थ्रू दिस पेज वंस अगेन, पेमेंट पर्पस के बाद आप सेकेंड पेज पे आते हैं जहाँ डिपॉजिटर या जो हमारे पेंशनर हैं वो अपना सारा डिटेल्स भरेंगे. जो रेड एस्ट्रिक मार्क्ड आइटम्स हैं वो मैंडेटरी हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं. मोबाइल नंबर और ईमेल ID को बहुत ध्यान से भरें बिकॉज इंफॉर्मेशन सारा इसी पे आएगा. उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ही है यहाँ पे. वी क्लिक नेक्स्ट. सो हमारा पेमेंट पर्पस हो गया, हमने अपनी डिटेल्स डाल दी. नाउ द थर्ड पेज जो खुलता है वो है कंफर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. जो हमने प्रीवियस पेज में इंफॉर्मेशन भरा वो सारा यहाँ पे अब दिख रहा है हमें.
वी जस्ट हैव टू चेक, इसमें कोई करेक्शन है तो वी कैन ऑलवेज गो बैक. ये बैक बटन आपको यहाँ दिख रहा है, यू कैन गो बैक एंड मेक द करेक्शन. और जो फर्स्ट पेज पे हमने भरा था हमारे पेमेंट पर्पस डिटेल्स, वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है. वंस वी आर श्योर कि ये सारी डिटेल्स हमारी सही हैं, उसके बाद हम इसको कंफर्म, जो ये बटन है उसको क्लिक करेंगे. ये जो पेज खुलता है, दिस इज शोइंग अस द वेरियस पेमेंट गेटवेज दैट आर अवेलेबल फॉर मेकिंग द पेमेंट. ये अलग अलग बैंक्स हैं जो लिंक्ड अप हैं भारत कोष पोर्टल के थ्रू, सो यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ दीज. आपके पास चॉइस है नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के थ्रू. ये जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है, यू हैव टू फिल इन द कैप्चा. The steps are automatically explained here. आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है, after you click on pay button, you will be redirected to the secure gateway. This is the pay button here, जो bottom right side में आपको दिख रहा है. After completing the payment, you will be redirected back. Please wait. एक और important note है जो आपको ध्यान रखना है. Please wait and do not press the back button or refresh button of your browser while your transaction is being processed. नहीं तो वो मिडवे में ही रुक जाएगा and then there will be difficulties. Disclaimer: in case you do not receive transaction status as success or failure after completing all the steps in the payment process, then wait for 30 minutes and check the status of the transaction using Track Your Payment link on the Bharat Kosh homepage. We will be explaining this in the later slides. अभी के लिए आप याद रखिएगा कि आपका ट्रांजैक्शन स्टेटस यदि सक्सेस और फेलियर नहीं दिखता आपको, तो वेट करिएगा, आधे घंटे के लिए इंतज़ार करिएगा और उसके बाद ट्रैक पेमेंट में जाके अपना स्टेटस चेक करिएगा ऑन द भारत कोश होम पेज. इफ स्टेटस ऑफ योर ट्रांजैक्शन इज शोन एज फेल रेफ, देन प्रोसीड टू री इनिशिएट अ ट्रांजैक्शन फॉर द सेम पर्पस अगेन. In case the amount is debited from your account for the fail ref case, then you can expect the refund to be credited to your account in 3 to 5 working days. So I'll just repeat this once again. यदि आपका status of transaction में fail ref दिखता है, then फिर आप you can go back to the home page and reinitiate another transaction उसी चीज़ के लिए. Fail ref का मतलब है कि the money has not been debited from your account. सो आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा. पूरा प्रोसेस ख़त्म करने के बाद यदि आप चेक करते हैं और आपको दिखता है कि आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा ऑलरेडी पहले एक बार निकल चुका है, दिस इज द सेकेंड टाइम इट इज़ गोइंग, देन प्लीज डोंट वरी बिकॉज द रिफंड विल कम बैक टू योर अकाउंट इन 3 to 5 वर्किंग डेज. सो आफ्टर यू सिलेक्ट द चॉइस, आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, यू एंटर द कैप्चा. उसके बाद ये जो लास्ट लाइन है, आई एक्नॉलेज एंड कन्फर्म दैट आई हैव रेड एंड अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस, आपको इसको टिक करना है. दैट मीन्स यू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस. उसके बाद बॉटम राइट साइड में पे का बॉक्स दिखता है आपको, इसको आप क्लिक करिएगा. So this is just reiterating the steps that I just explained. Second last step is you click on the acknowledge the terms and conditions, and the last step you go back only if you find that there are ये हो नहीं पा रहा है, only then you go back, otherwise you proceed on to pay. These are the choices that you have. यहाँ पे कार्ड नंबर आप अपना एंटर करेंगे, कार्ड होल्डर का नाम जो भी है कार्ड पे वो आप एंटर करेंगे, एक्सपायरी डेट मेंशन करेंगे एंड द CVV नंबर जो आपके कार्ड के बैक पे लिखा हुआ है वो आप मेंशन करेंगे एंड देन यू क्लिक ऑन पे नाउ. The amount in INR that has to be filled in here. टैक्स इन INR ये सारे ऑटोफिल होके आते हैं. टोटल अमाउंट इन INR ये भी आपका ऑटोफिल होके आ जाता है. And then you click on confirm. If there is any discrepancy in any of these, you can always go back. Otherwise, ये जो बटन आपको दिख रहा है confirm का, आप इसको क्लिक करेंगे.
कंफर्म करने के बाद ये वाला पेज खुलता है. मैंने ट्रांजैक्शन मास्टर कार्ड यूज करके किया था एंड थ्रू माय HDFC बैंक. सो दीज आर द डिटेल्स जो खुल के आते हैं. इसमें आज की ट्रांजैक्शन की डेट जब मैंने किया था, आई हैड डन दिस ट्रांजैक्शन येस्टरडे, तो येस्टरडेज डेट आ रहा है, मेरा कार्ड नंबर, टोटल चार्जेस. यहाँ पर OTP का चॉइस आता है. टू ऑथेंटिकेट द ट्रांजैक्शन OTP आएगा. आई हैव टू क्लिक ऑन दिस. मेरे दैट इज व्हाई आई सेड कि जो आपका मोबाइल नंबर है और आपका ईमेल आईडी है वो दोनों डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द OTP विल बी सेंट ऑन दैट मोबाइल नंबर एंड ऑन दैट ईमेल आईडी. So once you click on OTP, you have to check your mobile for the OTP and enter the OTP and then click submit. Suppose आपके मोबाइल पे OTP नहीं आया है तो you can resend the OTP. You can see this here and then you submit it. जब आप उस सबमिट बटन को क्लिक करेंगे तो जो पेज खुलता है, दिस इज द पेज दैट ओपन्स, पेमेंट इन्फो. आपकी ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ये जब आप प्रिंट करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास खुल के आएगा. बैंक रेफरेंस नंबर, स्टेटस, सक्सेस. यदि यहाँ पे फेल रेफ जो मैंने बताया था आपको वो दिखता है तो दैट मीन्स amount the transaction has failed to take place and then you have to go back and make the transaction once again. मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में ₹2 का ट्रांजैक्शन किया था, which is why the amount is shown as 2. And reason, we are happy to inform you that transaction initiated by you is successful. You may like to take a printout of the receipt from the portal. इसका printout निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको अपने कार्ड के एप्लीकेशन के साथ लगाना पड़ेगा when you submit it to the office of the additional director of the concerned city. यहाँ पे है ट्रांजैक्शन रिसीट. इफ यू कैन सी दिस, बॉटम लेफ्ट साइड में PDF दिख रहा है. आप इसको क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं. बाकी डिटेल्स जैसा आप देख ही रहे हैं यहाँ पे खुल के आ गए हैं. इस पेज पर भी आप ट्रैक योर पेमेंट, आप देखिए यहाँ पे ट्रैक योर पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है. यू कैन ट्रैक योर पेमेंट यूजिंग दिस, या आप भारत कोष का जो फर्स्ट पेज है जिसको लैंडिंग पेज या होम पेज कहते हैं, जहाँ पे हमने URL डाला था, तो फर्स्ट पेज दैट ओपन्ड, वहां पर भी आपका ट्रैक योर पेमेंट का ऑप्शन है. इट इज अपियरिंग हियर ऑल्सो. दिस इज व्हाट अ भारत कोष रिसीट लुक्स लाइक. और इसी की प्रिंट आउट आपको अपने कार्ड के एप्लीकेशन के साथ लगाना है. इसमें आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं. ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसी को लेकर जो आपके एडिशनल डायरेक्टर के ऑफिस में ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर है या अकाउंट्स ऑफिसर है, इसी नंबर से आपका पेमेंट का डिटेल्स वो ट्रैक कर पाएंगे. आपका नाम आ गया है, कौन सी डेट पे आपने ट्रांजैक्शन किया, कितना सम के लिए किया, एंड पेंशनर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर CGHS कार्ड दिल्ली, ये सारे डिटेल्स इस पर खुल के आ गए हैं. Now this is back to the landing page. और यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको, ट्रैक योर पेमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हैं. सो दिस कंप्लीट्स द प्रोसेस. रेसीट तो आपका उसी टाइम, इफ द पेमेंट इज सक्सेसफुल, आपका रेसीट उसी टाइम जनरेट होके आ जाएगा. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ चलान. चलान में टेक, it may be generated the next day or it may take 3 to 4 days to get generated. Most of the drawing dispersing officers in offices of the additional directors, they insist for challan because challan is 100% confirmation that the payment has come into the government account. So it is better that you wait for 1 or 2 days and then take a printout of the challan from this portal itself. वो आपको मिल जाएगा. उसकी printout निकाल के आप अपने कार्ड के साथ लगाकर अपने एडिशनल डायरेक्टर के ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं. So that is the end of the presentation. If there are any queries, I can take them up. Thank you for a wonderful talk, ma'am. So there are a few queries in the chat box which we can discuss. One is Mr. Tapan Kumar Dasgupta has asked if it will be the same procedure to follow for renewal after 3 years. Yes, whatever payment you have to do, this is the process that is to be followed through Bharat Kosh. After 31st of October in Delhi, we will not be taking any more demand drafts. It will be through Bharat Kosh only. Outside cities mein to anyway it is through Bharat Kosh. Another person has asked, can he make his payment through Overseas Bank of India? You will have to check whether that bank is linked through Bharat Kosh portal.
वो जो मैंने पेमेंट वाले पेज पे मैंने खोला था, you will have to check if overseas bank is one of those banks which is given in that portal. Then of course you can pay. Otherwise, you will have to choose one of the banks which is given on that page. Okay, another person has asked that they had made the full payment for Bharat Coach for lifetime cards in June 23, but they have not received the card till now. So, can you give an insight on when they will receive the card? You will have to follow it up with the additional director of the city where you had applied for the card. आपके पास definitely you must have kept a copy of the application that you had submitted there. You will have to follow that up with the office of the additional director. I think that is it about for the queries. I think we can close the session now. Thank you, ma'am, for a wonderful talk. We'll meet you next week with another topic, another health-related topic. Till then, thank you all for joining. Thank you. End stream कर दो.